solito un po' di tradizione che il Presidente faccia un breve discorso prima di procedere poi alla proclamazione degli studenti veri e propri, in cui chiameremo uno per uno dal nome e daremo il voto e stringeremo la mano. So, let's start with the special speeches. So, dear students, but also the speech is not only for the students, but also for the relatives of the students, that we know that they gave a very strong support to the students during their well, first I say that today is a very important day for both the students and for the parents, for all the relatives, because all the relatives, they have followed the career and they really have a lot to make, let's say, the student career successful and to get it finished. And to say you need to be proud of the results that the students have achieved. And we know that this result required a big effort. It was not, let's say, simple one, especially in some fields. We know that some of you have some small jobs besides the study, some have like a regular job besides the study, and we know that this requires a strong effort. Another thing that I like to stress is that you have followed, let's say, not the standard path. Many of you have left your own country to come here to study. And perhaps others would have maybe chosen like a more traditional master course. In consideration what happens to this material when it needs to be exposed, what is the process to produce this material and so on. And with this master course, that's what we're trying to give you. That's what we're trying to do. To give to, let's say, a broader education and to give you, let's say, the full picture. And so we know, and this is kind of, let's say, addressed to the relatives, that your, not your students, but your relatives that reside here, they made a kind of a brave and a conscious choice. That is really, let's say, really addressing the challenges of our time, because probably one of the biggest challenges that we're facing is life. E per finire, essere uomini e donne oggi vuol dire non solo essere in grado di affrontare le sfide che vi attendono con competenza, diciamo così, tecnica, ma anche di comportarsi da cittadini del mondo con onestà intellettuale e amico. Quindi vi fare un applauso. So now I call each student in alphabetical order and I will be official. So the first one is Mr. Muhammad Amar. Mr. Muhammad Amar, the degree board has pronounced your final examination passed with a grade of 104 out of 110, and therefore, for the office conferred on me by the law, I hereby confer upon you the master degree in low carbon technologies and sustainable chemistry. Graduation class LM. Mrs. Ulitzer Den. The degree board has pronounced your final examination passed with a grade of 88 out of 110, and therefore, for the office conferred on me by the law, I hereby confer upon you the master degree in low carbon technologies and sustainable chemistry. Graduation class LN 71. Mrs. Afsa Munavar. The degree board has pronounced your final examination passed with a grade of 95 out of 110, and therefore, for the office conferred on me by the law, I hereby confer upon you the master degree in low carbon technologies and sustainable chemistry. Graduation class LM 71.
examination passed with a grade of 107 out of 110, and therefore for the office conferred on me by the law, I hereby confer on you the master degree in low-carbon technologies and sustainable chemistry. Graduation class LN 71. Mrs. Ayesha Hafiza Nawaz. The degree board has pronounced your final examination passed with a grade of 87 out of 110, and therefore, for the office conferred on me by the law, I hereby confer upon you the master degree in carbon technologies and sustainable chemistry. Graduation class LN 71. Mrs. Kelaren De Cordi Talebiano. Miss Gelaren de Ordi de Cordi, Italian, the degree board has pronounced your final examination passed with a grade of 104 out of 110, and therefore for the office conferred on me by the law, I hereby confer on you the master degree in carbon technology and sustainable chemistry. Graduation class LN 71.
हेलो आयशा, हाय। कैसे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? हम भी ठीक हैं। ओके, कैसा लग रहा है आज? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आज। आज मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है। तो क्या क्या चल रहा है अंदर? कुछ समझ नहीं आ रही, बस हो गया जो होगा। अभी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती मैं अपनी। तो आज की जो सेलिब्रेशन है उसमें आपका जो माइंड है क्या फील कर रहा है? माइंड तो अभी कुछ नहीं फील कर रहा, अभी तो रिलैक्स के ओके। इतनी बड़ी अचीवमेंट है हाँ, तो इसीलिए बस। तो यहाँ इंस्टीट्यूट में आप रहे, इस यूनिवर्सिटी में आप रहे, पढ़ाई की आपने, तो क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली बर्डन नहीं करते ज़्यादा स्टूडेंट्स पे, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का सिस्टम ज़्यादा आ जाता है। वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और पेपर भी वाइवा बेस्ड होते हैं, तो बस इसीलिए एज पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा पेपर वर्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और आपसे ओरल क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं। तो ऑल ओवर अगर आपका कोई मैसेज बाहर के जो स्टूडेंट आते हैं उनको देना हो तो पहला मैसेज क्या होगा उनके लिए? पहला मैसेज यही है, ज़रूर आएँ। यहाँ पे ज़्यादा जो है मशीनरी बहुत ज़्यादा है, लैब्स बहुत अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया, तो ज़रूर आएँ। और ये आपको सपोर्ट करते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो आपको लेनी चाहिए, इधर आके अप्लाई करना चाहिए। तो लैंग्वेज का कितना बड़ा इशू है यहाँ? लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश चल जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इटालियन को भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो हम पाकिस्तानी और इंडियन के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो बैलेंस हो जाता है। ओके, तो आपकी जो कामयाबी है आज, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट सबको जाता है, स्पेशली हमारे हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि शादी के बाद पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। और बाकी मेरी फैमिली को, माई पेरेंट्स इन लॉ को और माई डॉटर हाँ, जायरा, जाहिर है। उसको जाता है। आप हस्बैंड का नाम भी मेंशन कर दो। मेरा हस्बैंड का नाम मोहसिन गफ्फार है। ओके, तो कौन सा टाइम लगा जिसमें आपने स्ट्रगल किया ज़्यादा? स्ट्रगल मेरी डॉटर के पास मुझे ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। और मेरे 2 एग्ज़ाम रहते थे, तो वो मैंने अपनी बेटी के साथ दिए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बेटी की भी कंट्रीब्यूशन है इसमें? यस, इसलिए इसका भी काम बनवाया है। आपकी डिग्री का हिस्सा उसको भी जाता है? जी जी बिल्कुल, इसलिए तो उसे भी क्रेडिट दिया है। ओके, तो फैमिली की सपोर्ट, फैमिली का कौन सा मेंबर, मम्मी डैडी, सिस्टर ब्रदर, उनके साथ कैसा रहा ये सफर आपका? मेरी 2 फैमिलीज हैं, मेरी पेरेंट्स इन लॉज हैं और माई मॉम डैड जो पाकिस्तान में है। सब ने बहुत मोटिवेट किया, सबकी बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो सब ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करके इस लेवल पे पहुंचा दिया है। आज का दिन कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि आज फाइनल प्रेजेंटेशन थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस थी, कंफ्यूज थी, तो लेकिन अब नॉर्मल है। अब सब आए हुए हैं, सबके साथ पिक्चर सेशन चल रहा है, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके, तो फ्यूचर का प्लान? फ्यूचर अभी जायरा के साथ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह पीएचडी के लिए भी अप्लाई करूंगी, जॉब्स के लिए भी अप्लाई करूंगी, जहां मुझे किस्मत ले जाए। ओके, तो लास्ट कोई मैसेज? मैसेज यही है कि पढ़ना चाहिए और आएँ आप लोग भी, सब यूरोप आएँ, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आप सर्च करें, ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग अप्लाई करें। और यहाँ पे स्कॉलरशिप बेस पे सब कुछ होता है, ना कोई इतनी फीस है, तो फिर सबको आना चाहिए। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारकें। थैंक यू। बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी अफसा, कैसे हो आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। हम भी ठीक हैं। कैसे रहा आपका ये सफर?
बहुत अच्छा सफर, बहुत अच्छा रहा, 3 साल का सफर रहा। हाँ। और शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन उसके बाद अब अच्छा हो गया। एंड अच्छा हुआ, तो सब अच्छा हुआ। तो कौन सी चीज जिसको आपने बहुत ज्यादा मिस किया इस सारे सफर में? सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को, अपने ओके। साथ सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस किया, अपने मुल्क की कोई खानों को मिस किया, हाँ। अपने मुल्क की चीजों को मिस किया। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा। बाकी सब चीजें यहाँ, मुझे सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये मिली कि मुझे अपनों का साथ मिल गया, मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने और सब ने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि जाहिर है मेरा 3 साल का सफर है, तो ऐसा आसान तो कटा नहीं, मुश्किल भी आई, आसानियां भी आई। जो मुश्किलात में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, वेरी गुड। तो इसलिए मेरा सफर अच्छे आसानी से गुजर गया। कोई एक चीज जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो? बहुत सारी है। एक पूछी मैंने, जो मेजर है वो बता दो, बड़ी है जो। सबसे बड़ी परेशानी मुझे जब आई थी तो वो पैसों की तरफ से आ गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अकेले इंसान है और अकेले सरवाइव करना है, सारा कुछ सब कुछ देखना है, अपना रेंट, अपना खाना पीना, रहना सहना, एक घर गृहस्थी होती है पूरी इंसान की। तो उस लिहाज से जरा थोड़ी सी, और शुरू में मुझे, मेरे साथ तो ये मसला हुआ था कि मुझे स्कॉलरशिप आधी हो गई थी मेरी, तो उसलिए भी मुझे थोड़ा इशू हुआ था। बाकी सब अच्छा रहा। तो कुछ इंस्टीट्यूट को कुछ कहना हो? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, नो डाउट। बस एक चीज जो थी, मैंने इनको पहले भी कही और अब भी कहूंगी, कि रिसेप्शन पे इंग्लिश बोलने वाले बिठाएं, जिनको इंग्लिश भी आती हो। क्योंकि वैसे तो जो है ना, हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंग्वेज, जब हम नए नए आते हैं तो हमें लैंग्वेज नहीं आती, जाहिर है। अब ये है कि हम समझ लेते हैं, लेकिन जब न्यू न्यू आए थे तो उसको बिल्कुल हमें समझ नहीं आती थी। तो इन लोगों का सिर्फ ये था कि वो इटालियन ही बोलते थे, वो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमें कम्युनिकेशन में बहुत इश्यूज होते थे। बाकी तो फिर अच्छा रहा, लेकिन अब समझ आने लगी है तो अब इशू नहीं है। लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहूंगी कि रिसेप्शन पे एटलीस्ट जो है ऐसे स्पोकन पर्सन हो जिनको इंग्लिश भी आती हो और इटालियन भी आती हो। तो आज के दिन के लिए कुछ नया मैसेज? आज के दिन के लिए मैं बस बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हूँ। शुरू में मैं बहुत नर्वस थी, पहले प्रेजेंटेशन थी तो एंजाइटी होती है, प्रेजेंटेशन हो गई, अब बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूँ कि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे जो भी जानने वाले हैं, वैसे तो मेरी कोई ऐसा रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन ये सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और सब ने मुझे बहुत अपनाइयत दी। मुझे मेरे माँ बाप की कमी भी महसूस नहीं होने दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर के लिए ये है कि या तो पीएचडी करना है या फिर जॉब करनी है। अभी फिलहाल तो देखें क्या करने का होता है, जिसमें हो जाए पहले, क्योंकि इंसान हर तरफ देखना चाहिए। तो मैं अभी पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ और जॉब के लिए भी अप्लाई करूंगी अब। ओके। आपकी इस कामयाबी के लिए किसको श्रेय देना चाहोगे आप? इसका का सारा जो क्रेडिट है वो मेरे पापा को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही जो किया उन्होंने किया। और चाहे फिर वो पैसे से हो या जो है जिस्मानी मेहनत हो, मुझे लेके जाना, मुझे लेके आना, मेरे लिए भाग दौड़ करना, हर चीज सारा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। ना कि अभी, बल्कि मेरे जहाँ, जैसे मैं पाकिस्तान के हालात से देखकर सब से आई हूँ, उस सब का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है कि उनकी वजह से मैं हूँ जो हूँ आज, उनकी वजह से हूँ। ओके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू करने के लिए। तो हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ। तो आज के लिए कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू, बेस्ट विशेज फॉर फ्यूचर। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
ऊपर ਨੂੰ ਰੱਖਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੋਲਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਸਨ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ